कि मेंटोर्स अगर अच्छे मिल जाए ना, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। You might have think about CA or ACCA. Yes. Then फिर वो confusion दूर हाँ करने जी। के लिए so what was your strategy? How did you manage ACCA, BCom and your internship? टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना टाइम दे रहे हो, और अगर आप Now you know all the insights of the business and technology exams. Keep coming with it. Keep coming with it. So welcome to another podcast of FinTram Global, in which we share ACCA success story of our proud FinTrammers. So today we are going to cover a very inspirational story of Gunika, and I hope everyone will get information about ACCA and how to clear ACCA, how to manage your work life, your college along with ACCA. So this is going to be very informative podcast. So don't forget to watch till the end. Okay, so let's move on to our esteemed guest Gunika and let us know about her. So Gunika, would you like to share something about yourself? Hello everyone, my name is Gunika. I am an ACCA student, and with that I am pursuing my BCom, and also I am doing internship at a CA firm. And today I have cleared my BT exam with a score of 55 marks. Okay, yeah. So I'm sure Gunika is sharing everything, but she is being modest. You know, managing at her age, managing ACCA, BCom, and as well as internship. You know how you guys can relate to it, na? Ki how to manage that time, how to take out time for ACCA like studies when you have so much responsibilities. I'm sure it's a really hard work and hard efforts took for you to prepare for exams as well. Yes. So yeah, great to know about it. So let's start with the first thing first. How did you know about ACCA? Get to know about ACCA. Actually, I always wanted to explore the foreign markets. Earlier, I decided to pursue CA, but my interest was always in the globally. I always want to work globally. So I came through one of my mentor, and he actually helped me to decide what should I do. So he told me about ACCA and what are the opportunities connected with it and all those things. So I also read about it and explored about ACCA, how the exams are, what's the structure, and how can I do it. So by that I got to know about ACCA, and I started developing my interest in ACCA. So this is it. This is how I know about ACCA. Great. You know, those mentors are always looking after for Yes. us. And so if I know, like, who was that person? Actually, I work at a CA firm, I told before. So he's like my boss and also my mentor. His name is CA Lalit Mittal. So my mentor, as I said, Lalit Mittal sir ने ही मुझे ACCA के बारे में बताया, and he referred me to Pankaj sir. And when I came to FinTram Global, I met Pankaj sir and he told me about everything. तो मेरा एक्सपीरियंस FinTram के साथ काफ़ी अच्छा रहा, बिकॉज उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बहुत डिटेल्ड में समझाई, मुझे एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करी. एंड एज आई टोल्ड देम आई एम वर्किंग, सो दे टोल्ड मी कि क्लासेस बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगी, आई कैन मैनेज इट विद माई वर्क, एंड ड्यू टू देयर सपोर्ट आई एम हेयर टुडे. एंड बहुत ही अच्छी मेरी जर्नी रही. उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करी, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, और कैसे कैसे मैं मतलब उन पे स्टेप बाय स्टेप हाउ आई कैन कंप्लीट दिस जर्नी. तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा पंकज सर के साथ. ग्रेट. अब इससे मेरे को यही समझ में आया कि बॉस, एक अच्छा बॉस, you know, they look after for you, and Yes. then they suggest the best for you. Yes. So always discuss with your peers जो आपके पास available है, and before selecting the course, you know, because I am also aware that you might have think about CA or ACCA. Yes. Then फिर वो confusion दूर हाँ करने जी. के लिए एक एक्चुअल मेंटोर जो कि ऑलरेडी इन सब चीज़ों से गो थ्रू हो रखा हो, तो उसका एक एडवाइस बहुत अच्छा रहता है. हाँ जी. Great. So
let's move on to next part, which is related to exam, and that helped her in clearing the exam. So what was your strategy? How did you manage ACCA, BCom and your internship, and how did you take out time? कैसे time निकाला? एक्चुअली मैं 8 hours की जॉब एंड देन बिटवीन दैट आई ट्राई टू मैनेज टू टेक द क्लासेस बिकॉज फ्लेक्सिबल क्लासेस हैं तो दिक्कत नहीं होती. ऑनलाइन मोड भी है, ऑफलाइन मोड भी है, तो आई कैन टेक द क्लासेस एट ऑफिस. आई ट्राई टू मैनेज दैट एंड देन रात में मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मैंने आज क्लास में पढ़ा टू रिवाइज दैट एंड ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक, ऑन दैट कंसेप्ट, सो दैट मेरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. तो मैं ऐसे मतलब रात में पढ़ के थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ कि कैसे कंसेप्ट्स को रिवाइज़ किया जाए ताकि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो ऐसे मैंने मैनेज किया अभी तक तो. So, एक छोटा सा क्वेश्चन है, साइड क्वेश्चन है मेरा. कैसा लग रहा था जब आपको रियलाइज़ हो गया था कि तीनों चीज़ एक साथ चलने वाली है? उस मोमेंट पे कैसा लग रहा था आपको? एक बार सोच के तो थोड़ा लगा कि अरे मतलब कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगी, बट हाँ हो गया धीरे धीरे मैनेज. बिकॉज ऐसा था कि मेंटर्स अगर अच्छे मिल जाए ना, क्योंकि आप देखो तो कोई भी ऑफिस में आपको अलाउ नहीं करेगा क्लासेस लेने के लिए. तो उन्होंने मुझे इतना मतलब इतनी लीनियंसी दिखाई, तो मेरे को थोड़ा लगा कि अरे मुझे भी अब कुछ तो करना ही पड़ेगा. अगर मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं सब तो मुझे भी करना है, एफ़र्ट्स मुझे भी डालने हैं. तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि रात में पढूँ, मतलब जितना पढ़ सकती हूँ. बहुत बार ऐसा भी होता है कि मन नहीं करता पढ़ने का, बिकॉज टायरिंग हो जाता है बहुत कभी कभी, बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि 2 घंटे नहीं तो एटलीस्ट 1 घंटा तो पढ़ लूँ कि कुछ मतलब कंसिस्टेंसी मेरी रहेगी. तो वैसे करके हो जाता है. दिस इज़ सो डीप. आई मीन हार्ड वर्क का एक न्यू एग्जाम्पल आई हैव सीन, सो इट्स रियली गुड. So our next question is like, how did FinTram team help you in terms of faculty support, everything? Actually, FinTram played a major role in my success, in my this journey, ACCA journey, because जो उनका मतलब एक तो फ्लेक्सिबल आवर्स, कभी भी अगर मैं कांटेक्ट करूँ, मुझे किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो टीचर्स आर ऑलवेज़ अवेलेबल. मैं उन्हें रात में बहुत बार, जैसे मैं रात में पढ़ती हूँ तो मैं रात को 12 बजे 1 बजे भी मैसेजेस करती हूँ एंड दे रिप्लाई मी द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो वो चीज़ मुझे बहुत एक अच्छी लगी, बहुत मुझे हेल्पफुल लगी. और जो है कि क्लासेस बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो मैं अगर मुझे क्लासेस में स्किप भी हो जाती हैं कभी कभी, ऑफिस में नहीं ले पाती, तो वी हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर्स. तो मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू मैं कंसेप्ट्स रिवाइज़ कर सकती हूँ. और अगर मुझे एक कंसेप्ट फिर से पढ़ना है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसमें भी हेल्प करते हैं, तो मैं कंसेप्ट रिवाइज़ कर पाती हूँ. और वैसे भी टेक्निकल भी और भी कोई एरर्स होते हैं साइट पे, अगर कोई प्रॉब्लम है ACCA साइट पे, तो भी जो FinTram की टीम है बहुत हेल्प करती है. whenever I call them, they give me the best solution. So it played a major role in my journey. I think जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए कोचिंग सेंटर का साथ बहुत ज़रूरी होता है. और FinTram स्टार्टिंग से ही अपना बेस्ट ट्राई करती है टू प्रोवाइड दो सर्विसेज. यू नो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टूडेंट, कि स्मूथ रहे, स्टूडेंट को स्ट्रेस कम लेना पड़े इन सब चीज़ों पे, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ पे रहे. तो FinTram इज़ always trying to do the best for the students. Let's go to the business and studies that you have cleared recently. So कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी स्किप नहीं करना चाहिए? देयर वर फ्यू टॉपिक्स जो मुझे लगे कि हाँ ये तो मुझे स्किप नहीं करना चाहिए. मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे शायद और अच्छे से इनको पढ़ना चाहिए था. जैसे कि हमारा मोटिवेशन, लीडरशिप, उनकी थ्योरी स्पेशली, बिकॉज थ्योरीज़ आप पर्सन का नेम भूल जाते हो, तो वो चीज़ें एग्ज़ाम टाइम में फिर दिक्कत देती हैं, क्योंकि नेम नहीं याद आता कि ये किसकी थ्योरी थी. आपको थ्योरी पता है, आपको कंसेप्ट पता है, बट यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन. सो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो मोटिवेशन, लीडरशिप, लर्निंग स्टाइल्स, ये चीज़ें मुझे लगी कि हाँ इन पे मतलब ज़्यादा फोकस करना चाहिए. ये कंसेप्ट्स मुझे थोड़े लगे. और मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे उससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में, तो दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द ग्राफ्स. नाउ यू नो ऑल द इनसाइट्स ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी एग्जाम्स. तो फिर यही इन टॉपिक्स को फटाफट से रिवाइज कर लो अगर आप BT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो. एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़
3 tips to follow for exam. Okay. Tips I Gunika would ki say. tips. Sorry. Yeah, continue please. इट्स ओके. टिप्स आई वुड से कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंटली कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं तो उससे आपके मतलब दिमाग में वो कंसेप्ट रहते हैं, तो आप उन्हें भूलते नहीं हैं. और दूसरी चीज़ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंसेप्ट को मेमोराइज करने के बजाय उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए. बिकॉज बहुत बार हमें लगता है कि ये अगर हम क्वेश्चन करने जाते हैं हमें लगता है कि कंसेप्ट समझ नहीं आया, बट कंसेप्ट समझ नहीं आया ऐसा कुछ नहीं होता. कंसेप्ट उस टाइम पे याद नहीं आया, वो चीज़ होती है. तो हमें मतलब कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स से, कि हमें मतलब वो कंसेप्ट्स याद रहें. और थर्ड आई वुड से कि टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितना टाइम दे रहे हो. और अगर आप टाइम दे रहे हो तो उसमें जैसे अगर आप 2 घंटे दे रहे हो तो उसमें कितनी देर आप फ़ोन चला रहे हो. बिकॉज मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि साइड में नोटिफिकेशन आई तो फटाफट फ़ोन देख लिया. तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को आप कैसे मैनेज करते हो. तो यही मुझे लगा कि टिप्स ज़रूरी हैं. I would like to add one more question. जी Sorry, इट्स ओके. getting out of hand, but इट्स ओके. रिलैक्स कैसे करते हो आप? कैसे वो रिलैक्सेशन का टाइम, या फिर जो थोड़ा सा काम या फिर पीसफुल या फिर इंजॉयमेंट वाला टाइम होता है वो एक्चुअली कैसे मेरा निकालते हो? क्या रिलैक्सेशन होता है मेरी फैमिली से बात करके, क्योंकि जैसे मैं अभी रहती दिल्ली में हूँ बट मैं हूँ हरियाणा से, तो मेरी फैमिली दूर है. बट तो मुझे उनसे बात करके मतलब थोड़ा बहुत उनके साथ पूरे दिन का शेयर करके कि आज ये हुआ वो हुआ, तो मुझे उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है. और बाकी थोड़ा सॉन्ग्स वगैरह सुन के, और कभी कभी मूवी देख लेती हूँ टाइम मिलता है तो ऐसे करके हो जाता है. Good to know. It's more relatable now. मतलब वो नॉर्मल चीज़ें भी हैं. हाँ काफ़ी जी. हार्ड वर्क है, काफ़ी हार्ड डिसीजंस है जो आपने लिया अपनी अभी तक जर्नी में, बट दिस इज़ लाइक पार्ट विच इज़ रिलेटेबल कि हाँ हमारी तरह म्यूज़िक भी सुनती है, पढ़ती रहती है, बट हाँ वो अगर मेट्रो में आते जाते म्यूज़िक सुन लेती हूँ तो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है. घर जाके पढ़ने के लिए थोड़ा वो माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि पढ़ना है. Lastly, I would just like a one word for FinTram Global that you would like to give. I think one word would be supportive. दे आर वेरी सपोर्टिव, बिकॉज वो आपको पर्सनली भी बहुत चीज़ों में हेल्प करेंगे. कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं, कब देने हैं, तो उन चीज़ों में बहुत सपोर्ट करता है FinTram Global. सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू स्टे इन टच विद FinTram Global if you are pursuing your ACCA or any other foreign professional journeys. I would recommend FinTram Global for that. Okay, thank you. Great. Gunika, that was really blast of information, Thank and your journey is really inspiring. Also for me, now I would focus on more things and थोड़ा सा कम enjoy करूँ, लेकिन नहीं इन्जॉयमेंट भी आई थिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना भी फिर आपका माइंड ही नहीं रिलैक्स होगा. Right. तो आप कैसे करोगे. Great. So that was Gunika and our proud FinTrammer. And if you like this story and you want to watch more such success stories, so don't forget to subscribe to our channel, or follow if you are on Instagram, if you are watching on Instagram. And yeah, thanks so Thank much you. for being here. Thank you so much. Think ACCA, think FinTram.